السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ تلنگانہ میں 1477 جائیدادوں پر عنقریب تقررات، پبلک سروس کمیشن کے اعلامیہ کی اجرائی۔ تلنگانہ میں مزدوروں کی اقل ترین تنخواہ 10,000 سے زائد ہوگی۔ مے ڈے کے موقع پر سرکاری تقریب کے دوران وزیر داخلہ کا اعلان۔ سرکاری اداروں میں پری پیڈ برقی میٹرز کی تنصیب، برقی بقایا جات پر قابو پانے کے لیے ریاستی حکومت کا فیصلہ۔ اور تلنگانہ میں گرمی کا قہر بدستور جاری، تاحال 500 سے زائد افراد کی ہلاک ہونے کی اطلاع۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن نے 3 مختلف محکمہ جات میں 1477 جائیدادوں کے لیے اعلامیہ جاری کر دیا ہے۔ محکمہ زراعت میں AEO جائیداد کے لیے 1000، محکمہ ٹرانسپورٹ میں 137 اور آبکاری کانسٹیبل کی 340 جائیدادوں پر تقررات کے لیے 4 مئی سے درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ محکمہ زراعت کے AEO کی جائیدادوں کے لیے درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 19 مئی ہوگی اور اس کے امتحان 4 جون کو منعقد کیے جائیں گے، جبکہ ٹرانسپورٹ اور آبکاری محکمے کی مقلوعہ جائیدادوں کے لیے مئی 30 تاریخ تک درخواستیں داخل کی جا سکتی ہیں۔ ان امتحانات کی تاریخ کا عنقریب اعلان کیا جائے گا۔ تلنگانہ حکومت نے سرکاری اداروں میں برقی بقایا جات پر قابو پانے کے لیے پری پیڈ برقی میٹرز لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق تلنگانہ ڈسکیمپ میں اس سلسلے میں پری پیڈ برقی میٹرز فراہم کرنے کے لیے 4 کمپنیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ تجربے کے طور پر جون کے مہینے سے ہی سرکاری اداروں میں یہ اسمارٹ میٹرز لگائے جائیں گے۔ بعد میں اس کو صنعتی شعبے اور گھریلو صارفین کے لیے بھی لازمی کرنے کا منصوبہ ہے اور اس پر آنے والا خرچ بھی صارفین پر ہی ڈالا جائے گا۔ پتہ چلا ہے کہ سنگل فیز کا میٹر 7,000 روپے میں آئے گا اور 3 فیز کا میٹر 8,000 روپے کا ہوگا۔ اس میٹر کی خاص بات یہ ہوگی کہ جمع شدہ رقم تک برقی سربراہ ہوتی رہے گی، بعد میں برقی خود بخود منقطع ہو جائے گی۔ اس میٹر میں ایک خصوصی بٹن بھی دیا گیا ہے جس کے استعمال سے مزید 24 گھنٹے تک برقی سربراہی ہوتی رہے گی۔ اس دوران رقم جمع نہ کروانے پر برقی منقطع ہو جائے گی۔ واضح ہے کہ اس طرح کے میٹرز کا تجربہ اتر پردیش میں بھی کیا جا چکا ہے، لیکن وہاں پر ناکام ثابت ہوا۔ تلنگانہ برقی ملازمین JAC نے برقی ملازمین کی تقسیم کے سلسلے میں تشکیل دی گئی جسٹس دھرم ادھیکاری کمیٹی سے نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے ملازمین کو تلنگانہ میں ملازمت کرنے کا موقع دیں اور تلنگانہ میں کام کرنے والے آندھرا ملازمین کو آندھرا منتقل کیا جائے۔ ملازمین کی تقسیم مقامیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے، جبکہ بعض آندھرا ملازمین کو ان کو دیے گئے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے کہ ان کے نام پر تلنگانہ میں کام کرنا چاہتے ہیں، جو قابل قبول نہیں ہے۔ لہٰذا مقامیت کی بنیاد پر ہی ملازمین کی تقسیم ہونی چاہیے۔ عوامی نظام تقسیم میں بائیو میٹرک طریقے پر عمل کرنے سے حکومت کو 46 کروڑ 54 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر GHMC حدود میں موجود 1545 راشن دکانوں میں بائیو میٹرک طریقے کا آغاز کیا گیا تھا۔ 2 ماہ میں حکومت کو 46 کروڑ 54 لاکھ روپے کا فائدہ ہوا ہے۔ عہدیداروں نے کہا کہ بائیو میٹرک نظام سے کالا بازاری پر قابو پایا گیا ہے، لہٰذا حکومت اس کو پوری ریاست میں توسیع دینے پر غور کر رہی ہے۔ پوری ریاست میں اگر اس نظام کو توسیع دی جائے تو اندازے کے مطابق حکومت کو 500 کروڑ روپے کی آمدنی ہو سکتی ہے۔ واضح ہے کہ عوام کو فوڈ سیکورٹی کارڈ دینے کے بجائے حکومت بائیو میٹرک طریقے کے ذریعے عوام کو اجناس فراہم کر رہی ہے، لیکن اس طریقہ کار سے عوام کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس پر بھی حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مارچ میں 21 کروڑ کی رقم کا فائدہ ہوا تھا اور اپریل میں اس میں مزید 5 کروڑ کا اضافہ ہو گیا۔ حکومت کو چاہیے کہ بائیو میٹرک نظام کے ساتھ ساتھ غریب عوام کا بھی خیال رکھا جائے، کیونکہ کئی راشن دکانوں میں مارچ کے مہینے میں جن افراد کو ان مشینوں کے ذریعے راشن فراہم کیا گیا تھا،
इन्हीं अफराद को अप्रैल में राशन से महरूम होना पड़ा क्योंकि इस मशीन ने उनकी उंगलियों के निशान को कबूल नहीं किया। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इस निज़ाम को पूरी रियासत में तोसी देने से पहले इसके मनफी पहलू का भी तफसीली जायजा लें ताकि मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम ना हों। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पीर के दिन कालेश्वरम प्रोजेक्ट कॉमेडी गड्ढा बैरेज का संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इतवार की शाम ही करीमनगर के लिए रवाना हो गए। इतवार की रात वो करीमनगर में क़याम करेंगे और पीर की सुबह वो इस प्रोजेक्ट के संग बुनियाद के लिए रवाना होंगे। ओहदेदारों ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। पंचायत और देही तरक्यात के वजीर जय कृष्णा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि महकमे के मंजूर शुदा कामों को बरवक्त ना करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। सेक्रेटरीट में ओहदेदारों के साथ जायज़े इजलास में वजीर ने बताया कि मरकजी हुकूमत और नाबार्ड के फंड्स को मौसर अंदाज में इस्तेमाल करते हुए कामों में तेजी लाई जाए। मौसम बरसात में तमाम पंचायतों में हरितहरनम प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को देही रोज़गार स्कीम से मरबूत किया जाए और इस स्कीम को यौमिया उजरत वक्त पर अदा की जाए। तेलंगाना में मजदूर तबके को कम से कम तनख्वाह 10,000 रुपये से ज़ायद होगी। मे डे के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक्किदा सरकारी तकरीब में वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत मजदूर तबके को कम से कम 10,000 रुपये तनख्वाह दिए जाने के लिए कानून वाज़े करने वाली है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत 10,000 रुपये से ज़्यादा तनख्वाह देने के लिए कोशिशें कर रही हैं। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने आउटसोर्सिंग मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी इजाफा किया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मालिकीन और मजदूरों के दरमियान खुशगवार माहौल होना चाहिए। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तेलंगाना की सनती पॉलिसी तैयार की गई है। वज़ीर दाखिला ने बाज़ लोगों की जानिब से हुकूमत के खिलाफ की जा रही तनकीदों पर खबरदार किया कि वो इस तरह का माहौल पैदा ना करें। हुकूमत मजदूरों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है। तेलंगाना तहरीक में मजदूर तबके ने अहम रोल अदा किया है। रुकन पार्लियामेंट कविता ने TRS भवन में मे डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर पार्टी के मजदूर तंजीम की परचम कुशाई अंजाम दी गई। इस मौके पर कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मजदूरों के साथ हैं। कविता ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में शफाफ हुकूमत कायम करने के हक़ में हैं। सरकारी इदारों में बदउनवानियों के खात्मे के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सनती शोबे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत मजदूरों के मसाइल की यकसोई करेगी। तेलुगु देशम के दफ्तर में भी मे डे तकरीब मुनक्किद की गई। इस मौके पर पार्टी सदर एल रमना ने तेलुगु देशम मजदूर तंजीम की परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजदूरों को खुद अपने मसाइल की जद्दोजहद के लिए मुत्तहद होने की ज़रूरत है। तेलुगु देशम पार्टी हमेशा से मजदूर तबके का साथ देती आ रही है। इन्होंने कहा कि मजदूरों के मसाइल की यकसोई के लिए पार्टी सतह पर एक कमेटी तश्कील देने का भी फैसला किया गया है। गांधी भवन में INTUC की जानिब से मे डे तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के सदर PCC उत्तम कुमार रेड्डी ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि मरकजी व रियासती हुकूमतें मजदूरों की हक तलफी कर रही हैं। इन्होंने खबरदार किया कि मजदूरों के हुकूक का ख्याल रखा जाए। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मजदूरों के हुकूक के लिए मुसलसिल जद्दोजहद करती रहेगी। YSR पार्टी के दफ्तर में भी मे डे तकरीब मुनक्किद की गई। सदर जगन मोहन रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि आलमी सतह पर यह दिन मनाया जाता है और मजदूरों के हक में YSR पार्टी मुसलसिल जद्दोजहद करती आ रही है। जगन मोहन रेड्डी ने बताया कि उनकी पार्टी का मतलब ही नौजवान, मजदूर और किसानों की तरक्की है। जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में ब्रांडेक्स कंपनी के मजदूरों का हवाला देते हुए कहा कि विशाखापट्टनम में जब ये मजदूर एहतजाज कर रहे थे, वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने उनके मसले की यकसोई करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाईं। इन्होंने अपील की कि मजदूर तबका मुत्तहद होकर अपने हक के लिए जद्दोजहद करे।
रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना इलाकों के लिए पानी की फिक्र करते हुए जगन की भूख हड़ताल मज़ायका खैज है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना इलाके में पानी की फिक्र करते हुए जगन मोहन रेड्डी मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी इस वक्त क्यों खामोश थे जब उनकी वालिद ने पोती रेड्डी पाड़ से तेलंगाना इलाके की फिक्र किए बगैर आंध्रा को पानी मुंतकिल किया था। हनुमंत राव ने इल्ज़ाम लगाया कि पी जनार्दन रेड्डी की मौत के जिम्मेदार भी वायएसआर हैं। रुकने राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्रीपेड बरकी मीटर लागू करने का मंसूबा तैयार किया जा रहा है, जिससे गरीब आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। आलमी तर्ज के शहर के नाम पर हुकूमत को गरीब आवाम पर इस तरह के तजुर्बे नहीं करने चाहिए। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। तेलंगाना रियासत में गर्मी का कहर जारी है और मजीद कुछ दिन इसमें कमी के कोई आसार नहीं है। ज़राए के मुताबिक कलेक्टर्स ने हुकूमत को जो रिपोर्ट दी है, इसके मुताबिक 500 से ज़्यादा अफराद लू लगने से फौत हुए हैं। सबसे ज़्यादा नलगुंडे में 332, महबूब नगर में 97, खम्मम में 38, मेदक में 38, करीमनगर में 28, आदिलाबाद में 20, रंगारेड्डी में 16, निज़ामाबाद में 13, हैदराबाद में 2, वरंगल में 1 फौत हुए हैं, जबकि सरकारी तौर पर सिर्फ 173 अमवात होने की तस्दीक की गई है। मजलिसी अराकीन असम्बली के अजला के दौरों और सख्त मौसम में अजला के मजलिसी अराकीन बलदिया जिम्मेदारों और आवाम से मुलाकातें करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत का सिलसिला जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर अराकीन असम्बली मुख्तलिफ अजला का दौरा कर रहे हैं। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इस सिलसिले में संगारेड्डी टाउन का दौरा किया। मुबस्सिर बराए संगारेड्डी मोहम्मद मंजूर अली खान, सदर टाउन निज़ामुद्दीन और अराकीन बलदिया के हमरा इन्होंने मुकामी ज़िम्मेदारों से तफसीली बात की, जिसमें उन्हें बताया गया कि मुकामी TRS के रुकन असम्बली और दीगर ज़िम्मेदार मजलिसी अराकीन बलदिया की नुमाइंदगियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। पानी की शदीद किल्लत है और मौसम की शिद्दत की वजह से पानी की किल्लत अवामी बरहमी का बाइस बन रही है। इसके अलावा दीगर हल तलब कामों और अपने अपने हलकों के मसाइल से कौसर मोहिउद्दीन को वाकिफ करवाया गया। इन्होंने कहा कि इन तमाम मसाइल पर मुश्तमिल रिपोर्ट सदर मजलिस को पेश की जाएगी और इसके बाद ज़िले कलेक्टर से मुलाकात करते हुए इनकी यकसोई करवाई जाएगी। इंचार्ज संगारेड्डी मंजूर अली खान ने इंतज़ामिया की सर्द मोहरी के बावजूद संगारेड्डी के मजलिसी अराकीन की कारकर्दगी की सताइश की और मुत्तहद होकर काम करने का मशवरा दिया। शहर हैदराबाद में शादी ब्याह के मौके पर बाजा, पटाखे और हथियारों के साथ नाच की खतरनाक रिवायत चल पड़ी है। इस रिवायत को ख़त्म नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में कई नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो सकती हैं। पेश है एक तफसीली रिपोर्ट। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के दौरान हमारा माशरा समाजी और अखलाकी जिम्मेदारियों को पसोपुश्त डालता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके नताइज निहायत ही ख़राब बरामद होंगे। खुश होना, खुशी का इजहार करना और खुशियों में शामिल होना गलत बात नहीं है, लेकिन खुशी में आपे से बाहर हो जाना और आप अपना ही नुकसान कर लेना अच्छी बात भी तो नहीं। शादियों में रात देर गए तक बाजा नवाजी और क़रीब में रहने वालों को तकलीफ पहुंचाना किसी भी मज़हब और किसी भी माशरे में अच्छा नहीं समझा गया है। मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता और क़ानून भी इजाज़त नहीं देता। ज़ाहिर है कि जब आदमी मज़हब और क़ानून के अहकामात के खुलेआम खिलाफ वर्जी करता है तो उसे याद रखना चाहिए कि बुरा वक्त बोल कर नहीं आता। हैदराबाद के माशरे में शादियों में फिजूल खर्ची, दिखावा, शान और रात देर गए तक बाजे बजाना और सड़कों पर नाचना अब आम बात बनती जा रही है। पहले तो ये सिर्फ शादी के रोज़ तक महदूद था और अब तो वलीमे की दावत में भी बाजे के साथ फूल का हार लाने की रिवायत चल पड़ी है। इन बारातों के दौरान न सिर्फ मौज मस्ती और रक्स हो रहा है, बल्कि नौजवान सरेआम खंजरों, तलवारों और दिगर ममनुआ हथियारों के साथ नाचते कूदते दिखाई दे रहे हैं। इन नासमझ नौजवानों, इनके समझदार सरपरस्तों को याद रखना चाहिए, असला का सरेआम लेकर घूमना कानूनन जुर्म है।
तलवारों के साथ नाचने वाले नौजवानों को आर्म्स एक्ट के तहत बुक करके गिरफ्तार किया जा सकता है। उसकी आने वाली जिंदगी बर्बाद हो सकती है। साथ ही साथ नाचते वक्त किसी को इत्तेफाकी तौर पर लग जाने से जख्मी होने या मरने का खतरा अपनी जगह है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो समझ लीजिए दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ेगा। एक की जिंदगी चले जाने से और दूसरे की जिंदगी जीते जी बर्बाद हो जाने से। हैदराबाद में हालिया अरसे के दौरान ऐसे नज़ारे कई शादियों में देखने को मिले हैं। सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को अपनी हरकतों से बाज रखें। इसके अलावा बाजा नवाजी के दौरान आतिशबाजी भी आम चलन बनती जा रही है। जिसका हकीकी मुस्लिम माशरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पटाखे छोड़ने वाले मुसलमानों को वो हदीस याद रखना चाहिए जिसमें कहा गया है कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे महफूज रहें। 4 टीवी अपने नाजरीन को हैदराबाद के माशरे की मौजूदा हालात के बारे में बताते हुए ये पैगाम देना चाहता है कि मुसलमान अब भी ऐसी सरगर्मियों पर रोक लगाएं, वरना आने वाले दिन इनके लिए परेशान कुन साबित हो सकते हैं, क्योंकि महकमा पुलिस ने ऐसी सरगर्मियों के खिलाफ सख्ती से निपटने का इरादा कर लिया है। अगर पुलिस ने आहानी पंजे का इस्तेमाल करते हुए इस मामले में सख्ती दिखाई तो कई घरों के बच्चे जेल की सलाखों के पीछे होंगे, इनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी और सरपरस्तों के लिए रोने और तड़पने के सिवा कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। कैमरा पर्सन नोमान के साथ एसएम रफी की रिपोर्ट, 4 टीवी न्यूज़। सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने तुकाराम गेट पुलिस स्टेशन की इमारत के तामीरी कामों और सीसीटीवी कैमरों के एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर पुलिस इंजन कुमार और डीसीपी नॉर्थ जोन प्रकाश रेड्डी के अलावा पुलिस के दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। जमीयत अहले हदीस की तश्कील 9 अमल में लाई गई है। तंजीम के जिम्मेदार अब्दुल रहीम कुर्रम ने मीडिया को बताया कि साबिक में फर्जी जमीयत अहले हदीस एक खुद साख्ता मंशूर पर काम करते हुए नफरत और इख्तिलाफात को फ़रोग दे रही थी। इन्होंने बताया कि कुरान मजीद जिन बातों को रोकता है वो इस पर अमल पैरा थी, हत्ता कि आपसी इख्तिलाफात के लिए अदालतों में मुकदमे दायर किए गए थे। नई कमेटी के जिम्मेदारों में अमीर की हैसियत से फसीउद्दीन का इंतखाब अमल में लाया गया है। नौजवानों को आपस में मिलाने के लिए, मसाजिद को आपस में जोड़ने के लिए, मनहज सल्फ़ सालेह को फ़रोग़ देने के लिए, किताब और सुन्नत की दावत को आम इंसान तक पहुँचाने की गर्ज से हमने इस जमात की तश्कील अमल में लाया है। इसका अपना एक नज़्बुल मनाया जाएगा। शोराई निज़ाम के तहत ये जमात चलाई जाएगी। किसी किस्म के इख्तिलाफ़ को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। सूबाई सतह पर सूबाई जमीयत अहले हदीस तेलंगाना के अमीर जनाब मौलाना फसीहुद्दीन साहब दाइल अल्लाह वो हैं और जनाब हबीब अब्दुल कादिर साहब शहरी जमीयत अहले हदीस के अमीर बनाए गए हैं। और मैं एक जमात के खादिम की हैसियत से बात कहता हूँ, इंशाअल्लाह हम सब मजदूर बनकर किताब और सुन्नत की इमारत को इंशाअल्लाह असर नौ शहर हैदराबाद। बंजरा हिल्स, हिमायू नगर पुलिस हदूद में भोला नगर, ख्वाजा नगर और अहमद नगर में पुलिस ने घर घर तलाशी मुहिम चलाई। वेस्ट जोन डीसीपी वेंकटेश्वर लू की निगरानी में पुलिस की 12 टीमों ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। इस मुहिम के दौरान 6 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। मुनासिब दस्तावेजात ना होने पर 58 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वेंकटेश्वर लू ने मीडिया को बताया कि आवाम में सलामती का एहसास पैदा करने के लिए ये मुहिम चलाई गई थी। 2014 से 2016 के दरमियान घर घर तलाशी मुहिम से जुराइम के वाक़यात में 18% कमी आई है। इस मुहिम के दौरान 550 मकानात का अहाता किया गया है और पुलिस के तई अवाम में एतमाद पैदा करने के लिए भी ये तलाशी मुहिम चलाई गई।
पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी मुहिम के दौरान बच्चा मजदूरी करने वाले 150 बच्चों को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। बाद अज़ां पुलिस ने इन बच्चों को इतवार की सुबह सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से पटना एक्सप्रेस के जरिए उनके आबाई मुकाम को रवाना कर दिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में 1477 जायदादों पर अनकरीब तकर्रुरात, पब्लिक सर्विस कमीशन के एलामिया की इजराई। तेलंगाना में मजदूरों की अक्ल तरीन तनख्वाह 10,000 से ज्यादा होगी। मे डे के मौके पर सरकारी तकरीब के दौरान वजीर दाखिला का ऐलान। सरकारी इदारों में प्रीपेड बरकी मीटर्स की तनसीब, बरकी बकायाजात पर काबू पाने के लिए रियासती हुकूमत का फैसला। और तेलंगाना में गर्मी का कहर बदस्तूर जारी, ताहाल 500 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तला। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।